जीते रहो बेटा. Yesterday we discussed the graphs. Just a quick revision of that. I'm just considering velocity time graph. Let's suppose we have velocity time graph. Case A, case B, and okay. Case C. What do you think? What happened in case A? Sir, uniform speed. Uniform speed. Ali, you are absolutely right, but help me to figure out what do you mean by uniform speed? Sir, it's constant. It's constant. Like if the object is moving with a velocity of 25 meters per second, then it remains the same. Yes, sir. Okay. Good, Ali. Very good. Now, somebody else. Can you tell me what's happening in case B? In this case, Non-uniform acceleration. all right. Velocity is uniform, non-uniform, Non. increasing, decreasing. What's Sir. happening? Mariam पहले Mariam. जी Mariam. Continue with that, beta. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Okay, please make me understand. What do you mean by that? Speed is increasing, but not at a constant, I don't know, rate. But Ali It's was not saying, like Ali was saying that it is constant, 25 meter per second square. It's the same here. In this case, he was saying it's constant. You are saying it is increasing. yeah, but it's not constant because it's bending. All right, then our case A is wrong then. Okay, C. Let me give them the numbers. 0, let's suppose 5, 10, 15, 20, 25. Okay? And this is, let's suppose 10 meters per second, 20, 30, 40, and so on. So, Mariam, you are saying that velocity is increasing here, and the velocity will also increase here then. But Ali said it is uniform, it's constant. Yeah, I agree to what he said for A. You agreed to Ali that uniform velocity. Sir, at A it is uniform acceleration. अच्छा शाही A में या B में? Sir, A में. Shahid says, no, it's not uniform velocity, it's uniform acceleration. Loji, I am totally confused now. Please help me. Ji, anybody else? What do you say? हम तो केस ए पे ही फंस गए यार. अच्छा खासा अली ने बता दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही सेड 25 मीटर पर सेकंड अगर है तो उसी से कांस्टेंट जा रही है, यूनिफॉर्म है. हालांकि 5 सेकंड्स पे वो 10 थी, 10 पे वो 20 हो गई है, 15 पे वो 30 हो गई है, 20 पे 38. सर इसको सर एक्सेलरेशन जो है सर वो यूनिफॉर्म है, लेकिन सर वेलोसिटी जो है सर वो तो इंक्रीज हो रही है ना. सही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अच्छा देखो बात सुनो,
तुम लोग अपने अपनी जगह पे अच्छा सोच रहे हो, बट हमने पता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी बात करनी है। अभी हम इसको मत छेड़ें, एक्सेलरेशन की टर्म्स में हम अभी बात नहीं करेंगे। प्लीज टेल मी विद रिस्पेक्ट टू टाइम The वेलोसिटी rate इज of increase of velocity is constant. व्हाट? The rate of increase of velocity is constant. यानी आपने कान इधर से पकड़ ही लिया। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी Yes, sir. is uniform, constant। जी. अच्छा जी, ये तो चले समरीन ने अपनी बात की। कोई और बच्चा? हरमैन, यू वर टेलिंग अस, प्लीज एक्सप्लेन दैट। जी सर मैं कह रहा था कि सर मैंने एक्सेलरेशन वाली बात की थी कि एक्सेलरेट जो हो गया सर, एक्सेलरेशन सेम है लेकिन सर स्पीड बढ़ रही है। ऑल राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ही एक्सेलरेशन ना, वो ठीक है। आप भी यही बात कर रहे हैं, गुड। उन्होंने भी इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में करके बता दिया हमें। अच्छा, एक्सेलरेशन से तो हो रही है, जरा सादा सादा सी बात करो, टाइम के साथ वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है या सेम है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के Increase साथ। कर रही है sir. वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, दैट जी मीन्स sir. कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर टाइम के साथ Uniform साथ, increase. हाँ, अगर टाइम के साथ साथ ये रहती, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, Uniform velocity. Uniform velocity. और इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक लाइन को? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की टर्म्स में नहीं बात करनी, वेलोसिटी की टर्म में बात करनी। बेटा याद रखना है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप लोग सही सोच रहे हो, जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो सही कह रहे हो, रॉन्ग नहीं है वो। 20 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट है ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी व्हेन वी आर डीलिंग विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वी कैन से वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट इज नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, सेम। और ये जो ब्लैक लाइन है, ये बेटा uniformly increasing velocity, टाइम के साथ साथ उतना ही इंक्रीज आ रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक हो गया? अली समझ में आ रहा है? Yes, sir. All right, good boy. So this is uniform velocity and this is uniformly increasing velocity. Mariam, you were telling us something in terms of that increasing and decreasing velocity. Now tell us, maybe now you are able to comprehend this explanation. Ji. Yeah. C is non-uniform velocity increasing thingy. Now It's not B because B is stopping at some point. all right, B and C somehow they are just the opposite of each other. But what's happening there? Let's talk about B first. Sir, the velocity increases non-uniformly first, but then it becomes constant at a point. Velocity increases, Non-uniformly. ये straight line मतलब है। आपने बनाया हुआ कर्व ऐसे है ना, तो वो यहाँ से लग रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन हो सकता है आपने बनाया हो यूनिफॉर्मली का, तो वी डोंट रियली नो सर. ऑल राइट, शाबाश, गुड। सो उसके लिए मुझे इसको नंबर्स देने पड़ेंगे। सो टू सम एक्सटेंट ये यूनिफॉर्म है, फिर नॉन यूनिफॉर्म या डिक्रीजिंग है, और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट. शाबाश। So is the velocity increasing and then becoming constant, or it's decreasing and then becoming constant? इंक्रीजिंग सर. Okay, बाकियों का क्या ख्याल है?
Increasing. Good. It is increasing. 10, 20, 40. ठीक है बेटा? हादिया? Velocity at 0 it was 0. When it was 5 seconds तो velocity कितनी होगी? तकरीबन 18. 10 पे 30 होगी. So it's increasing. और फिर later on यहां पे क्या हो रहा है? This is turning constant. Same. Now it is not increasing. 40 पे जाके approximately 15 seconds के बाद velocity constant हो रही थी. ठीक है? जैसे आप let's suppose मोटरवे पे जा रहे हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होते 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 फिर आप let's suppose 110 पे आपने कांस्टेंट कर ली तो फिर उसी पे यूनिफॉर्मली आप चलते जा रहे हो. इट्स दैट जर्नी. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सी पार्ट. जी, सी में क्या हो रहा है जी? सी में क्या हो रहा है? सर ये कुछ अजीब सी है, समझ नहीं आ रही. टाइम नहीं इंक्रीज कर रहा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज किए जा रही है. अच्छा, ओके, चलो मैं इसको नंबर्स दे देता हूं. ये 0, 5, 10, 15, 20. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ केस इसमें ये ब्लैक वाली लाइन को मैं कंसिडर कर रहा हूं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी? नो जी सर. सर, All हो right. रही थी सर. अच्छा, कोई सर ब्लैक वाली में हो रही थी सर, ब्लू वाली में नहीं थी. नहीं, मैं ब्लू Blue वाली वाली लगा, में ही होती। ब्लू वाली हटा देता हूं, वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था. ये लो मैंने इसको हटा दिया. ठीक है ना बेटा? यूनिफॉर्मली Black में इंक्रीजिंग होती। वेलोसिटी. इसमें एक्सेलरेशन थी? जी सर. जी सर. Yes, sir. तीनों में एक्सेलरेशन है? यस Yes, सर. बी sir. पे एक पॉइंट तक थी, देखो फिर बेटा, नहीं थी. तीनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी. चलो ये तो हो गया. अब मुझे ये बताओ इसमें एक्सेलरेशन कैसी है? ए में सर इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. Uniform. शाबाश, Uniform. यूनिफॉर्म कांस्टेंट, वेरी गुड. इसमें यूनिफॉर्म है, एक जैसी एक्सेलरेशन है ना, उससे कम हो रही है ना ज्यादा. अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर से है, किसने ये दबा दी और गाड़ी आपकी स्पीड गेन करती जा रही है. ठीक है, बट उसमें चेंज जो है वो यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. गुड, एक्सीलेंट. अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है बी केस में? सर कांस्टेंट से डिक्रीज कर रही है. सर ये Decrease नॉन कर रही है? यूनिफॉर्म, सर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर जीरो हो जाती है. No, sir, non-uniform नहीं है. अच्छा यार, ये जो 3 बच्चे बोल रहे हैं ना, हरमैन, शाहिद, समरीन, अब आप तीनों जरा खामोश हो जाए. ठीक है बेटा? ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाकियों को भी थोड़ा सा चांस दें. जी, मेरे पास और कोई 15-16 बच्चे हैं, उनमें से कोई बच्चा बताए, प्यारा बच्चा. व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स हैपनिंग हियर इन केस बी? व्हाट्स हैपनिंग विद द एक्सेलरेशन? थैंक यू वेरी मच. जीते रहो बेटा. सर पहले वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, पहले फिर वो आगे जाके टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचती है. यूनिफॉर्मली क्या इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन नहीं हो रही. जब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट थी? इस केस में देखो, आप कह रहे हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो ना तो ये केस बने. ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है? थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म है और फिर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी या डिक्रीज हो रही है? सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज इन वेलोसिटी कम होती जा रही है, उसके तो बाद कम हो एक्सेलरेशन रही है. डिक्रीज होती जा रही है. तो एंड में एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? इस पॉइंट Zero. ऑनवर्ड्स यहां पर ए क्या होगी? सर जीरो. शाबाश, जीरो. कोई चेंज नहीं आ रही, यहां पर चेंज कम हो रही है. मैं अगर इसको ए बी
सी पॉइंट्स कहूं तो ए टू बी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन है. बी टू सी दैट चेंज इन वेलोसिटी इज लेस, डिक्रीजिंग. Gradually decreasing. So acceleration is decreasing. है सही एक्सेलरेशन, पहले से उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो गई है. और C ऑनवर्ड्स एक्सेलरेशन जीरो होगी, नो मोर चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है बेटा? ओके. नाउ लुक एट C पार्ट. वो चीज गई है और फिर उसके बाद रॉकेट बन गया और बहुत सर, स्पीड इसमें- से. ठीक है, तो इसमें यहां तक एक्सेलरेशन क्या थी? एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट. यहां से एक्सेलरेशन क्या होना शुरू हुई? इंक्रीज. Increase. और यहां पर और इंक्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी बेचारी तो पागल ही होगी ना, कितनी ज्यादा हाई हो गई है वेलोसिटी. ऑलराइट, ठीक है बेटा? तो अगर एक्सेलरेशन आपने इंक्रीज करनी है तो चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए हर सेकंड में. सर ये जो सी में है, जी. सर ये आपका ये जो कर्व है सर, ये सीधा तो नहीं हो रहा ना सर, ये थोड़ा सा बस है. इतना ही, हाँ बस ये इतना हो जाएगा, उसके बाद जर्नी खत्म हो जाएगी. अच्छा ठीक है बेटा? उसके बाद ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा. अच्छा, सारे बच्चों को मैंने ग्रुप में एक पिक्चर सी भेजी है. 3 क्वेश्चंस हैं, 7, 6, 7, 8 एंड 9. ये तीनों बेटा चारों सवाल बड़े